लेक्चर। आप लोग सुन रहे हैं सभी? Yes, sir. Okay, so Yes, 10 has joined. I think rest of you may join in a successive period. We should continue our family APSC. So in previous lecture we have started family APSC. As far as APSC family considered, it is important for one of the important reasons, that is its economic importance or economic uses in a routine practices. जैसे कि अजवाइन है, जीरा है, धनिया है. These are three important spices of Indian culinary, and even few people call them as a condiment. Condiment means substitute which is used to increase palatability as well as मराठी में हम जिसको स्वाद बोलते हैं of different food preparations. Now as far as APSC family considered, I think I have told you in an earlier lecture, jeera, which is one of the important plant from this family. इंडिया में जीरा सबसे ज्यादा कहाँ पिकता है? Which is the largest cultivar of jeera in our country? Hello, hello, कोई बता सकता है? हेलो, कोई बता सकता है? नहीं पता सर. नहीं पता. राजस्थान. राजस्थान is the largest country cultivar of jeera. So remember a very interesting plants from this family, that is coriander या धनिया, जीरा, ajwain. So these are the three important plants from this family. In our earlier lecture we have studied the interesting features of this family, and as far as this family considered, we have studied it belongs to clade, that is asterids, and order is APLs. The earlier name of family was family Umbelliferae, and it is only because of its umbel inflorescence. Just in literal meaning, umbel means umbrella like. आपने ओपन किया हुआ छाता देखा, उसको सेंटर में पकड़ने के लिए डंडी रहती है, नहीं तो सेंट्रल एक्सिस बोलेंगे. और आप देखते होंगे कि छाते का ऊपर का जो पूरा पोर्शन है, जिसको आप छाता बोलते हैं, जहाँ कपड़ा लटकाते या लगाया हुआ रहता, उसमें आपने देखे होंगे आयरन वायर्स रहते हैं, एंड दीज आयरन वायर्स और कॉर्ड्स, दीज आर having equal length, and that's why it has equal diameter also. So just like in umbel type of inflorescence, all the flowers are having equal stalk, or whatever may be the length of stalk, but at the top they are forming just canopy like umbrella, and hence they are called as that is umbel type of inflorescence. During the earlier time, the name of family was Umbelliferae because of umbel inflorescence, but according to ICBN, name of family should end with ACEAE, and in Umbelliferae that is not observed, hence its name was changed to APSC. While giving name to any of the family, you might be known the largest genera. Name of the largest genera is normally given to family. For example, Cisalpinaceae, Cisalpinia, largest genera. Mimosaceae, Mimosa, largest genera. Fabaceae, group of Faba or Val, largest genera supposed to be. Papilionaceae, butterfly shaped corolla, and so on. So just like in APSC, Apium is the largest genera, and so family is known as APSC family. Now, as far as this family considered, you can observe here large number of plants from this family. To the lowermost, it has been Dacus carota or gazer, and rest of these 1, 2, 3, 4, 5 photographs, these belongs to various genera of APSC. So at least at this stage, you remember that APSC belongs to kingdom Plantae and clade Tracheophyta angiosperm. So remember, इन क्लासिफिकेशन आपको अगर किसी भी इसका
अकॉर्डिंग टू APG4 एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन पूछा तो यहाँ तक आपका सही आने वाला है। दैट इज कौन सा? किंगडम प्लांटी, क्लेड ट्रैकियोफाइटा, क्लेड एंजियोस्पर्म। अब इसके बाद चेंजेस है, जैसे आप मोनोकॉट के एरेकेसी और एरेसी फैमिली देखे थे, तो देयर आर सर्टेन चेंजेस। जस्ट अ मिनट। So there are certain changes are observed. Just a minute. So as far as this family considered, APAC, as far as APAC family considered, that I have just now told you regarding its classification. So आप लोग सुन रहे हैं ना सभी? आप सभी सुन रहे हैं? हाँ, सो APAC के बारे में या किसी भी एंजियोस्पर्म के फैमिली के बारे में आपके पहले 3 क्लेड जो है, दैट इज किंगडम प्लांटी, क्लेड ट्रैकियोफाइट एंड क्लेड एंजियोस्पर्म इज विल बी सेम। उसके बाद आपका क्लेड नेक्स्ट क्लेड चेंज हो जाता है, जैसे कि यू डाइकॉट 2 होगा, यूरासिड होगा, नहीं तो मोनोकॉट्स होगा, व्हाटएवर इट मे बी। सो यू जस्ट रिमेंबर द क्लासिफिकेशन इन केस ऑफ APAC फैमिली। अब हम देखते हैं, as far as APAC considered, it is represented by 400 plus genera and over 3,500 species, and it is also known as carrot family. It is significant group of flowering plant. Why it is significant group of flowering plant? Normally in case of APAC, these are aromatic in nature, showing presence of umbel type of inflorescence, showing presence of schizocarpic, cremocarp type of a fruit, and most of these are having many more economic importances, and for this purpose this family is significant. Members are often aromatic and characterized by hollow stem, sometime angular or quadrangular, but hollow stem is observed in case of this family, and it has a taproot system and flat topped flowers cluster known as umbel. मैंने बताया था छाते जैसा ऊपर की कैनोपी जो है, it is a flat top, and hence these are the interesting features of this family. Now you should be known with at least some genera, and these the important genera. In the previous lecture we have studied the various photographs from internet. Today I am not going to show you many more photographs because you have already studied. So the important genera may be like Angelica, Pimpinella, Firula, Caravum, Apium, Myris, Antiriscus, Coriandrum, Oxypolis, Hericalium, Cuminum, then Anthium, Conopodium, Phoeniculum, Levisticum, Petroselinum, Pastinica, Conium, Apium, Dacus, Cucuta, and Sium. I know that this is a long list and it is quite difficult to remember, but I can mention some genera which are important. उसमें पहला एसाफोइटिडा, दैट इज फिरुला एसाफोइटिडा, मैंने कल बताया था आपको। एंशंट पर्सिया, अभी के ईरान में सबसे ज्यादा फिरुलिया का कल्टीवेशन होता है। फिरुला एसाफोइटिडा या हिंगाच्या अंडरग्राउंड रूट किंवा राइजोम पासून इन द फॉर्म ऑफ अ गम फिरुला इज एक्सट्रॅक्टेड. देन सेकंड प्लांट कैरावम कैरे, or it is known as जीरा, so it is also important. खास करके साउथ इंडियन और बहुत सारे डिशेस में हम देखते हुए है जीरा, which plays very important role. Then Apium graveolens, जिला तुम्ही शेपू म्हणतात, that should be remembered. उसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट जनरा है तो क्यूमिनम, बहुत बार कैरावम कैरवे और क्यूमिनम, इसके बारे में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है. दीज आर द डिफरेंट जनरा.
सो ये 4 हो गए. फोइनिकुलम वल्गेर, that is nothing but बडी सौफ या सौफ. It should be also remembered. जेवणानंतर मुखशुद्धी म्हणून किंवा डायजेस्टिव्ह म्हणून किंवा वन ऑफ द इम्पॉर्टंट इन्ग्रेडियंट ऑफ बिटल नट किंवा पानातला इन्ग्रेडियंट म्हणून वापरला जातो. उसके बाद अनदर इंटरेस्टिंग जनरा अगर आपको ध्यान में रखना है तो डाकस कैरोटा, गाजर, इट शुड बी रिमेम्बर्ड. So with these different genera you can remember this family. जब भी हम एक फैमिली में बहुत सारे प्लांट देखते हैं, अभी अभी हमने देखा कि 400 प्लस प्लांट एंड 6500 प्लस स्पेसीज आर अवेलेबल फ्रॉम दिस फैमिली. नाउ इट बिकम्स क्वाइट difficult to remember each and every genera or plant of this family, and for this purpose you should remember at least some of the diagnostic characteristic feature. डायग्नोस्टिक कैरेक्टर का आपको पता है कि डायग्नोस्टिक कैरेक्टर मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है which differentiate that plant from rest of plants or rest of families. So the first one stem is fistular. अब आपके साथ आप में से कोई भी बोलेगा सर फिस्टुलर स्टेम तो ग्रामिनी में भी रहता है, फिस्टुलर स्टेम तो निक्टेजिनेसी में भी रहता है. नो डाउट फिस्टुलर स्टेम रहता है, लेकिन along with this fistular stem one or more another distinguishing character going to separate this family, जैसे कि umbel inflorescence, aromatic smell and fistular inflorescence. ये 3-4 कैरेक्टर अगर आपने कंबाइन किए तो only and only APAC will be the representative. So stem is fistular. Fistular म्हणजे सहज मोडता येणारा. सांबार बघितला असेल, स्टेम हॉलो असतं, फिस्टुलर असतं, लॅटरल उभ्या लाईन्स असतात, that you might have observed. अब remember, in case of sambar, leaves are not simple, even these are not compound, and hence these are known as decompound leaves. So leaves in case of APAC, leaves alternate, much dissected, बहुत सारे dissected होते हैं, mostly decompound, मतलब कंपाउंड भी नहीं है और सिंपल भी नहीं है, ऐसा, that is decompound, sheathing leaf base. सांबार ज्यादा नीट केलं जातं त्यावेळेला तुम्ही बघितलं असं लीप काढलं तर खालच्या बाजूला थोडासा पोर्शन जो रहता है that is seeding leaf base. हम चाहे तो देख सकते हैं, जस्ट अ मिनट. यस, सीडिंग लीफ बेस और कौन सी फैमिली में रहता है? हेलो हेलो, सीडिंग लीफ बेस और कौन से फैमिली में रहता है? एनीबॉडी? हेलो, क्यों? देखो पोएसी में नहीं रहता, ग्रामीणी या पोएसी में शुगर केन, मेज, राइस, व्हीट, जवार, बार्ली, आप कितने भी प्लांट ले लो, शीडिंग मतलब विच इज कवरिंग टू स्टेम, तो दैट इज कॉल्ड एज सीडिंग लीफ बेस. आप यहाँ देख सकते हैं, क्या आप लोग ये इमेज देख सकते हैं? ये देखो, ये लीफ का बेसल पोर्शन जो है कवरिंग टू स्टेम और ये पूरा ऊपर लीफ है. सो दिस वन इज नोन एज सीडिंग लीफ बेस. आ रहा है ध्यान में? लीफ का बेसल पोर्शन जो है वो करता है या कवर करता है. मैंने अभी ग्रामीणी साइपरेसी का भी आपको एग्जांपल बताया था. ये देखो, साइपरेसी में शीत कवर करता है और ये लीफ ब्लेड या लीफ लैमिना रह गया. हम देखते हैं कोरिएंडरम सटाइवम का मतलब है सांबार. मैंने अभी आपको बताया था कि सांबार का लीफ जो है उसको हम बोलते हैं डीकम्पाउंड. यहाँ आपको देखा जाएगा पार्ट्स ऑफ टिपिकल लीफ एंड पल्विनस एंड सीडिंग लीफ बेस. पल्विनस का मतलब होता है फुगीर और ये है सीडिंग और ये है सिंपल लीफ. मुझे आपको दिखाना है कोरिएंडरम सटाइवम का लीफ. कोरिएंडरम सटाइवम मतलब सांबार. आप यहाँ लीफ देख सकते हैं कि जो डीकम्पाउंड लीफ है, आपने ये भी कोरिएंडरम का लीफ देखा है. जस्ट अ मिनट, ये लीफ तो आप सभी लोग जानते हैं. सो इट इज नोन एज अ डीकम्पाउंड लीफ. जस्ट अ मिनट. So you are known with decompound leaves. Now we can go through another interesting part of this, that is general characteristic features of this family.
नाउ हमने पहले ये देखा, अभी हम देख रहे थे जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। इन्फ्लोरेसेंस टिपिकली इट इज अम्बेल और कंपाउंड अम्बेल, ओकेजनली मतलब कभी कभी ये सिंपल भी है। फ्लावर्स इपिगाइनस, पेंटामेरस, पेंटामेरस मतलब इन द मल्टीपल ऑफ 5, रेगुलर, रेयरली ज़ाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल। आपको शुरू वाली जो डायग्राम आपने देखी थी, जो फोटोग्राफ शुरू वाला अगर देखा है तो आपको पता चलेगा। ये देखो, ये तीन जो है ये बड़े लग रहे हैं और बाकी पेटल्स जो है वो छोटे छोटे पेटल्स है। दैट मीन्स इट शोज प्रेजेंस ऑफ पेटल्स ऑफ अनइक्वल साइज और डिफरेंट साइज। अभी उसके बाद हम देखते हैं हेलिक्स, सुपीरियर, पेंटाफिड और जीरो, पेंटा मीन्स 5 और इट मे बी एब्सेंट। करोला 5, पॉलीपेटल्स, ऑफन इनफ्लेक्स्ड। करोला कितना है? 5। इनफ्लेक्स्ड है, इनफ्लेक्स्ड का मतलब है इट मे बी समटाइम रिड्यूस्ड और फ्यूज्ड। स्टेमेंस 5, कार्पेल्स 2, कार्पेल कितने हैं? स्टिग्मा 2, कार्पेल्स 2। सिन कार्पस, सिन मीन्स फ्यूज्ड। बायकार्पेलरी मतलब कार्पेल्स 2 है, with 2 pendulous ovules. Honey disc surrounding the stigmas, स्टाइलोपोडियम is present। क्या आप लोगों में से किसी ने कोरिएंडर का फील्ड देखा है? हेलो हेलो, कोरिएंडर हाँ का सर। फील्ड में जब उसको फ्लावरिंग आता है तब देखा है? यस सर। हाँ, यस सर। आपने बहुत बार आपको पता होगा कि क्या करते हैं, अपना कोरिएंडर जो है वो कोरिएंडर कहाँ लगाते हैं? जहाँ पानी है ऐसे जगह पे, खास करके विलेजेस में जहाँ डोमेस्टिक सीवेज किंवा बाथरूमचं पाणी जिथे बाहेर काढून दिलं जातं त्या एरियामध्ये बघा साधारणपणे केळी, आळू किंवा कोरिएंडर वगैरे अशी प्लांट लावली जातात। आणि तुम्ही बघितलं असेल, जर फ्लावरिंग येत असेल तर त्या फ्लावरिंग मध्ये लार्ज स्केल वरती हनीबीज जमा झालेल्या दिसतात। अँड वन ऑफ, इथं तुम्ही बघा, सेम अगेन इट इज अ मेंबर ऑफ Apiaceae family, or you can observe the presence of honeybee. Now, why these honeybees are observed on this? Because of very important part that honeybees वहां रहते हैं, उसका रीजन ये है कि the flower shows presence of nectary gland and they are going to secrete nectar, and for this nectar normally honeybees are going to जस्ट अ मिनट, क्या आप लोग अभी एक फिल्म अपना वीडियो देख रहे हैं? वीडियो दिख रहा Yes, है sir. आपको? हाँ, शायद सर। आवाज नहीं आ हाँ, रहा है, सर। लेकिन आप सिर्फ देख लो। दिख रहा है? यस सर। हाँ सर। जस्ट देख लो। क्या दिख रहा है? हेलो, आप लोगों ने वीडियो देखा अभी अभी? हाँ सर। हाँ, तो वीडियो वो मैंने जानबूझ के आपको इसलिए दिखाया था क्योंकि नॉर्मली इन केस ऑफ
few plants, large number of honeybees are attracted toward the flower, and it is only because of very important, that is nectar which is secreted by nectary gland. हम लोग कैरेक्टर देख रहे थे, कैरेक्टर देखते देखते मैंने आपको बताया था कि स्टैमेन्स 5, कार्पेल 2, सिनकार्पस, बाइकार्पेलरी with 2 pendulous ovule and honey disc surrounding stigma. अब दूसरा मैंने बताया था स्टाइलोपोडियम इज प्रेजेंट। हम देखते हैं कि व्हाट इज स्टाइलोपोडियम। स्टाइलोपोडियम भी आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। आज हेलो, हाँ बोला, हाँ बोला, हाँ कुछ नहीं, आपको जो भी है वो ऑनलाइन करना है, यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन भरना है। हाँ, सो हम लोग देख रहे थे अभी स्टाइलोपोडियम के बारे में, मैं आपको बोला कि बताना था। जस्ट मिनट। सो वी ऑब्जर्व हियर, दैट इज स्टाइलोपोडियम। स्टाइलोपोडियम, जस्ट मिनट। स्टाइलोपोडियम, that is a disc-shaped or conical swelling or expansion at the base of style in plants of family Umbelliferae. आप चाहे तो यहाँ देख सकते, glandular disc or expansion surrounding the ovary and supporting the style in the plants of parsley family, या that is disc like जो cushion like disc like surround करता है, that is in APAC। हम स्टाइलोपोडियम इन एपीएससी में जाकर कुछ भी इमेजेस अवेलेबल है उसमें देख सकते। आप यहाँ देख लो, आपको ये दिखेगा, ये जो कुशन लाइक स्ट्रक्चर है सराउंड करने वाला, नहीं तो कई बार वो स्टिग्मा के भी करीबन रहता है। सो दिस वन इज नथिंग बट स्टाइलोपोडियम। जस्ट अ मिनट। फ्रूट क्रीमोकार्प, सीड्स एंडोस्पर्मिक एंड ऑयली। फ्रूट है साइजोकार्पिक क्रीमोकार्प। मैंने आपको कल एग्जाम्पल बताया था कि जब भी धनिया सो करना है तो उसके पहले फार्मर क्या करता है, जूते के साथ उसको कोई रफ सरफेस पे घिसता है, सो दैट फ्रूट गेट स्प्लिट ओपन। और स्प्लिट ओपन होने के बाद उसके अंदर जो भी एंडोस्पर्म है, एम्ब्रियो है, वाटर के कांटेक्ट में आता है, इम्बिबिशन होता है और लेटर ऑन इट गेट्स germinated. So for this, these are the interesting characteristic features of family Apiaceae. मैं फिर रिपीट करता हूँ, फिस्टुलर स्टेम, अम्बेल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, उसके बाद प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक स्मेल, प्रेजेंस ऑफ स्टाइलोपोडियम एंड क्रीमोकार्प टाइप ऑफ फ्रूट। These are the interesting characteristic feature of this family. You get it? क्या आप लोगों ने ध्यान में लिया, सुना? हेलो, यस सर। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर। और इसके साथ साथ मैंने आपको जो बहुत सारे जनरा और लास्ट टाइम जो फोटोग्राफ दिखाए थे उसका रीजन वही था कि एटलीस्ट यू शुड रिमेंबर। मैंने लास्ट टाइम और आपको एक बताया था, आपल्याकडे ग्रामीण भागामध्ये शेपूची भाजी करतात आणि शेपूची भाजी इज सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट फॉर डायजेशन। त्यातल्या त्यात तुम्हाला माहिती असेल, आपल्याकडे 3 प्रकारचे दोष शरीरात आढळतात असं समजतात। त्यातला एक वात, दुसरा कफ आणि तिसरा पित्त। गॅसेस होतात त्यावेळेला कफ आणि पित्त विकार वाढतात आणि साधारणपणे गॅसेस होऊ नये म्हणून ज्या काही भाजीपाला वापरला जातो खाण्यामध्ये त्याच्यामधला हा अरोमॅटिक म्हणजे तुम्ही म्हणता शेपू,
So these are the interesting features of this family. Now, as far as distribution considered, it shows. आता बघा सुरुवातीला नंबर ऑफ जनरा आणि स्पेसिस बरेच जास्त सांगितले होते, आता कमी सांगितले 295 and 2800. and reason behind this, according to workers of that time, त्यांनी जितके जनरा बघितले तितके लिहिले, आपण ते लिटरेचर मधून उचलले. In India, family is represented by 180 species and 30 genera, म्हणजे 30 जनरा आहेत. अर्थात तुम्हाला बघितलं असेल आपण जवळपास 20-25 प्लांटची नावं लिस्ट मध्ये घेतली होती. प्लांट्स आर डिस्ट्रीब्युटेड ऑलमोस्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड एक्सेप्ट आर्क्टिक रिजन, म्हणजे पोलर रिजन सोडलं तर सगळीकडे प्लांट्स बघायला मिळतात. चीफ सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्युशन आर नॉर्थ टेम्परेट अँड सब ट्रॉपिकल रिजन, म्हणजे नॉर्थ हेमिस्फिअर मध्ये लार्ज स्केल वरती प्लांट्स दिसतात. Then, according to any botanist, economic importance of family plays important role. अगर फैमिली का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ही नहीं है तो कोई नहीं फैमिली देखेगा. और दिस फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इट्स इकोनॉमिक इंपॉर्टेंसेस. वेरियस प्लांट पार्ट्स आर शोइंग प्रेजेंस ऑफ essential oils and fruits as well as leaves are used in a culinary preparations or in a as a condiment, and that's why this family is important. Some of the important economically important aspects include food, that is green leafy part and green stem which are used as a food material. शेपूची भाजी मी आता सांगितलं होतं. इवन गाजराच्या बाबतीत सांगण्याची गरज नाही, which is also used on the large scale for as a food material. Then condiments सांगण्याची गरज नाही, जिरं आहे, अजवाईन आहे. Then fodder, some of you might be known की या फॅमिली मधले काही प्लांट जनावरांना फॉडर म्हणून पण वापरतात. ऐकून तुम्हाला माहिती असेल, जेव्हा गाजराचं लार्ज स्केल वरती उत्पन्न निघतं त्याला गाजर जनावरांना खाण्याकरता सुद्धा वापरतात. आय थिंक यू मस्ट बी नोन, सशाचं सगळ्यात आवडतं खाद्य कोणतं? जयंत गाजर. गाजर, और गाजर के साथ साथ कैबेज और फूलगोभी, इनके लीफी पार्ट्स. So you are better known with the utility or use of APAC members as a fodder. Then medicine, अजवाईन, जिरा या दोघांचे मेडिसिनल युजेस तुम्हाला सांगण्याची गरज नाही. सौंफ पण कार्मिनेटिव्ह म्हणून खाता. पोट फुगला असेल तर तुम्हाला माहिती असेल, लहान मुलाला सुद्धा ओवा खाऊन त्याच्या चेहऱ्यावर फुंकलं जातं किंवा पोटावर फुंकतात. दॅट माइट बी नोन टू यू. Then ornamentals, most of the plants of this family show presence of attractive flowers. मैंने शुरू में बताया था canopy of flower is produced, and that's why this family has ornamental importance also. म्हणजे economic importance या फॅमिलीचे जास्त आहे. Plants of this family are used for a purpose of food, condiment, medicine, fodder as well as ornamental purposes. For ornamental purposes. आता थोडस डिटेल मध्ये दिलेलं आहे बघा. As far as food material, carrot, that is Bacchus carota, celery, that is Apium graveolens, pansnip, that is Pastinica sativa, and Sova Pusidinum graveolens किंवा Pusidinum dhanae म्हणतात. These are cheaply used as a pot herb, and they are used as a Pusidinum dhanae किंवा Pusidinum graveolens. These are cheaply used as a herb. थोडस लक्षात घ्या, इथं हे जे जनरा आणि स्पेसिस दिलेले आहेत, या जनरा आणि स्पेसिसची नावं जरी इथं लिहिलेली असली आणि इटॅलिक मध्ये नसली तरी इट शुड बी इटॅलिक. टाईप करताना तर झालं पण ती नावं इटॅलिक केली गेली नाहीत. बाय मिस्टेक सुद्धा, if you are botanist or you are student of botany, then your name should not be in a single first script or plain. They should be italics, or at least they should be underlined if you are going to write it. So you just correct it. Just a minute. पुन्हा तसंच राहून जातं, मी म्हणून याला थोडासा करेक्ट करून टाकतो. So it should be italic. Just a minute. अरे बाहेरून नजर टाकून येता का? So
आपण हा बघत होतो, दॅट इज इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्सेस. आणि इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्सेस मध्ये आपण पहिला जो इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स होता फूड, त्याचा बघितला. हिंग, दॅट इज फिरुला असाफोइटिडा. अजवाइन, जीरा, सोप, धनिया यूज्ड एज अ कॉन्डिमेंट और कार्मिनेटिव्ह. कार्मिनेटिव्ह म्हणजे पाचक. हिंग इज ओलिओगम किंवा ओलिओरेझिन म्हणतात, ऑब्टेन फ्रॉम द रूट्स. फिरुला सुंबुल and Furula glabiniflora are also producing hing. Dorema also produces oleogum or oleoresin. Now fodder. Several members such as carrot, Heracleum, angelica provides fodder for cattle and horses, and hence they are cultivated. Medicinal plant. Centella और ब्राह्मी. क्या आप लोगों को पता है सेंटेला एशियाटिका और अनदर ब्राह्मी जो है, इसके बारे में बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन है. ब्राह्मी, हेलो, आप लोगों ने ये प्लांट देखा है? हेलो, क्या आप लोगों ने ऐसे लीफ वाला प्लांट देखा है? हेलो, हाँ सर. साधारणपणे पाटाचं वाहणारं पाणी जिथं असतं तिथं अशा प्रकारचे लिपी स्ट्रक्चर्स बघितले असतील. अच्छा, तुमच्यापैकी किती लोकांना ब्राह्मी आवळा केश तेल नावाचं केसाला लावण्याचं तेल मार्केटमध्ये मिळतं माहिती आहे? हॅलो, पता है सर. हा, मला वाटतं मार्केटमध्ये ब्रँड नेम प्रकाश नावानं मिळतं, प्रकाश माक्याचं आयुर्वेदिक तेल. तसंच ब्राह्मी आवळा केश तेल डाबरचं मिळतं. Now in Ayurveda there is a confusion whether the name of Brahmi is Centella asiatica or Centella asiatica should be considered as a Brahmi. इथं बघा, बऱ्याच वेळेला या प्लांटला ब्राह्मी या नावानं ओळखलं जातं and it is Centella asiatica. आता मी ब्राह्मीचे 2-3 प्रकार जे अस्तित्वात आहेत ते सांगतो. जलब्राह्मी, नीरब्राह्मी आणि मंडूकपर्णी या नावानं. आणखी मार्केटमध्ये तुम्ही जर बघितलं असेल तर दिस इज अ रिअल ब्राह्मी. खऱ्या अर्थानं ब्राह्मी ज्याला म्हणतात ती ही. सो ब्राह्मी बिलॉंग्स टू फॅमिली एपीएसी. तर ब्राह्मीमध्ये जलब्राह्मी किंवा नीरब्राह्मीमध्ये तुम्ही अशा प्रकारचे फ्लॉवर्स बघता. सेंटेला एशियाटिका मी आता तुम्हाला दाखवलं. उदाहरणार्थ इथं बघा वेगवेगळे प्रॉडक्ट दिसतील. सो these are the different products obtained prepared by different companies from various पार्ट्स ऑफ अ ब्राह्मी. तुम्ही आणखी एक प्रकार ऐकून माहिती असेल, ब्राह्मी आवला घृत. क्या ये नाम आपने कभी सुना है? हेलो, हेलो, अरे ऐकलंय कोणी? येस सर. ब्राह्मी घृत हा प्रकार ऐकलाय? ब्राह्मी ऐकलाय सर. ब्राह्मी ऐकलाय. ब्राह्मी आवला घृत नावाचा प्रकार ऐकलेला नाही आहे. पण ठीक आहे, तुम्ही ऐकला नसला तरी मी आता तुम्हाला एक मार्केट मधला हे दाखवतो. ब्राह्मी घी, मतलब जब घी बनाते तब उसमें भी ब्राह्मी का एक्सट्रैक्ट ऐड करते हैं because it is supposed to have properties to increase mental capacity. मेंटल कॅपॅसिटी इन्क्रीज करण्याची याच्यामध्ये पॉवर आहे असं समजलं जातं. आणि म्हणून अशा प्रकारचे मी आता सांगितलं होतं ब्राह्मी आवळा घृत. घृत म्हणजे तूप. तर वेगवेगळ्या प्रकारचे जे हे बनवले जातात. आणखी एक बाय प्रॉडक्ट बघा, दूध पापेश्वर. जस्ट मिनिट, इथं बघा, ब्राह्मी वटी सुवर्णयुक्त प्रोप्रायटरी वटी. म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे आयुर्वेदिक मेडिसिन्स मध्ये ब्राह्मी प्लेज व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. ब्राह्मीचा फार महत्वाचा रोल आयुर्वेदिक उत्पादनामध्ये आहे. उदाहरणार्थ इथं बघा, ब्राह्मी घृत लाभ, उपयोग, खुराक, साइड इफेक्ट और मृत्यु, मतलब अलग अलग कंपोनेंट्स में इसका यूज दिया है. ब्राह्मी घृतम, घृतम म्हणजेच तूप. सो इन आयुर्वेदा ब्राह्मी घृत और ब्राह्मी पासून बनवलेलं, ब्राह्मी पासून म्हणजे ब्राह्मी एक्सट्रॅक्ट इन्क्लूड केलेलं तूप याला आयुर्वेदात जास्त महत्व दिलं जातं. मैंने अभी अभी आपको बालों को लगाने का तेल बताया था, दैट इज ब्राह्मी आवळा तेल. इथं वैद्यनाथचं दिसतं. काही ठिकाणी तुम्हाला
प्रकाशचं पण दिसतं. सो कोट्टाकल, ब्राह्मी घृत. So these are the different products obtained from various parts of APSC. त्याच्यानंतर आपण बघूया द फ्लेशी रूट ऑफ किक्युटा अँड एथुसा आर पॉइझनस टू ऑल काइंड्स ऑफ लाईव्हस्टॉक. लाईव्हस्टॉक म्हणजे पाळीव जनावर. पाळीव जनावरांना हा धोकादायक आहे समजलं जातं. ऑर्नामेंटल ट्रॅचिमिनी किंवा ट्रॅचिस्पर्मम एम्मी. त्याच्यानंतर अँजेलिका, इरुंजियम, हिरॅकिलियम आर कल्टिवेटेड इन गार्डन फॉर देअर ब्युटिफुल फ्लावर्स. याच्याबद्दल मला फारसं बोलण्याची गरज नाही. परवा दिवशी तुम्ही फोटोग्राफ काही बघितलेले आहेत किंवा फार झालं तर युट्यूबवर एपीएससी मधला व्हिडिओ एखादा आहे का बघू. एपीएससी इन गार्डन, एपीएससी इन गार्डन आपण अवेलेबल व्हिडिओ काय आहेत म्हणजे इंटरनेटवर बघूया. फॅमिली एपीएससी और कोरिएंडर फॅमिली एपीएससी फॉर अम्बेलिपेरी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्सेस ऑफ 5 easy to growing Indian herbs. फूड फॉरेस्ट अँड गार्डन एपीएससी और अम्बेलिपेरी. जस्ट अ सेकंड बघूया. फ्लावर्स दिसत आहेत अट्रॅक्टिव्ह. हेलो, आप लोग देखते हैं अट्रैक्टिव फ्लावर्स. यस सर. एपीएससी के है. जस्ट मिनट, हम लोग फ्लावर्स ऑफ, मैंने ये वेबसाइट आपको बताई थी कि आपको किसी भी इसका अगर ये देखना है तो फ्लावर्स ऑफ इंडिया वेबसाइट पर जाओ. यहाँ अलग अलग आपको कैटेगरीज दिए हैं. अलग अलग कैटेगरीज से आपको जिस कैटेगरी में ढूंढना है, जैसे देखो, स्ट्रोल थ्रू द गार्डन, newly added flower, browse by botanical names, flowering trees, orchids, grasses, medicinal plants, identified trees, flowers of fragrance, creepers. आप कैटेगरी से आप ढूंढ सकते हैं. अब मैं यहाँ सर्च फॉर व्हाट मैं डालता हूँ एपीएससी. अब आपको यहाँ एपीएससी के 58 अलग अलग फ्लावर्स दिखेंगे. चलो हम देखते हैं. क्या आपको दिख रहा है? लॉन्ग स्टेम थ्रोवैक्स. चलो हमें जो जरुरी है वही देखते. ट्रॅचिस्पर्मम अम्मी किंवा ज्याला अजवाईन म्हणतात. अजवाईन बघितला? फ्लावर बघितलंय? हेलो, यस सर. फ्लावर देखा? जस्ट मिनट. उसके बाद कोइनम मैक्यूलिएटम का फ्लावर देखो. A very interesting and attractive flowers observed on this website. आप किसी भी प्लांट के बारे में देखो, आपको सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन, सबसे अच्छे फोटोग्राफ आपको इस वेबसाइट पर मिलेंगे. मैं बार बार बोलता था कि अम्बेल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, ये जो फ्लावर के स्टॉक है कितने भी छोटे या मोटे रहेंगे, लेकिन टोटली अगर आप देखोगे तो उसका अबाव वाला कैनोपी जो है इट विल बी वन एंड सेम. सो यू कैन ऑब्जर्व इट हियर आल्सो. जस्ट मिनट, हम और एक आधा देखते. चिरोफाइलम, एमी मेजस, हरक्यूलियस. जस्ट मिनट. हाइड्रोकोटाइल है क्या? हाइड्रोकोटाइल शायद यहाँ था. हाइड्रोकोटाइल मतलब हाइड्रोकोटाइल एशियाटिका, और ये जो मैं अभी दिखा रहा हूँ दैट इज हाइड्रोकोटाइल सिप्रोपिओइडिस, सबट्रॉपिओइडिस. पण सबट्रॉपिओइडिस नाही बघायचं आपल्याला. हाइड्रोकोटाइल एशियाटिका आहे का बघा. हाइड्रोकोटाइल जवानिका, जावा, हाइड्रोकोटाइल हिमालिका नाही. हाइड्रोकोटाइलच्या याच्यात फारच कमी स्पेसिस दाखवले. सो यू कॅन ऑब्जर्व इट ऑन फ्लावर्स ऑफ इंडिया. हेलो, क्या आप लोगों के ध्यान में आया? हेलो, you can search any of the family or any of the plant on flowers of India. बहुत ही अट्रैक्टिव कलर के अट्रैक्टिव फोटोग्राफ रहते हैं. मैं और दिखाता हूं आपको चाहे तो. चलो, कोरिएंडरम हम देखते हैं. कोरिएंडरम देखो, कोरिएंडरम सटायवम किंवा ज्याला तुम्ही म्हणता सांबार आहे. फोटोग्राफ व्यवस्थित? हेलो,
जेवढा आपल्याला आपल्या नजरेनं सुद्धा दिसत नाही इतका व्यवस्थित फोटोग्राफ याचा आहे. नॉट ओनली फोटोग्राफ, बघा खाली कॉमन नावं दिलेली आहेत वेगवेगळ्या इंडियन लँग्वेजेस मध्ये. उसके बाद कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है, आइडेंटिफिकेशन क्रेडिट और फोटोग्राफ किसका है ये भी दिया है. सो यू हैव आइडिया रिगार्डिंग एनी ऑफ द प्लांट फार्म, दैट इज फ्लावर्स ऑफ इंडिया. फ्लावर्स ऑफ इंडिया वेबसाइट हमेशा के लिए ध्यान में रखो, एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वेबसाइट फॉर बोटेनिस्ट. सो अभी इसके बाद हम देख रहे थे प्रिमिटिव कैरेक्टर. हमने लास्ट टाइम प्रिमिटिव कैरेक्टर देखे थे कि पेरिनियल या श्रबी प्लांट है, सिंपल लीफ है, करोला पॉलीपेटालस है, स्टेमेन पॉलीएंड्रस है, फ्लावर्स एक्टिनोमॉर्फिक या बाइसेक्सुअल है, इंसेक्ट पॉलिनेटेड है. सो दीज आर द प्रिमिटिव कैरेक्टर. लेकिन दिस फैमिली शोज मोस्ट ऑफ कैरेक्टर्स विच आर एडवांस्ड कैरेक्टर. अभी हम आपको बताते हैं कि इस फैमिली के एडवांस्ड कैरेक्टर कौन से हैं. जहां तक एडवांस्ड कैरेक्टर कहते हैं तो आपको पता है सिंपल लीफ, herbaceous stem, fistular stem, these are primitive characteristic feature. अभी एडवांस्ड में देखो, प्लांट मेनली herbaceous, annual और biennial, क्योंकि पेरिनियल और ट्री टाइप is considered as a primitive. So plant mainly herbaceous, annual or biennial. Leaves finely dissected and compound or decompound in many genera. हमने अभी तक कंपाउंड देखे थे, हमने अभी तक बहुत सारे सिंपल देखे थे, लेकिन डीकम्पाउंड हमने शायद हो सकता है बहुत रेयरली सुना है. इन्फ्लोरेसेंस अम्बेल और सिंपली कंपाउंड. अम्बेल सिंपल और कंपाउंड और अम्बेल मोस्ट ऑफ टाइम अम्बेल रहता है. फ्लावर स्मॉल एंड इन साइज, सम ज़ाइगोमॉर्फिक एंड एपिगाइनस. शायद आपने अगर गौर से देखा स्लाइड की तरफ तो मैंने क्या किया है, कुछ नहीं, अल्टरनेटली एक एक कैरेक्टर में अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स जो है वो लूज बनाई है. क्या आपके ध्यान में आ रहा है? देखो फर्स्ट कैरेक्टर मैंने हमेशा जैसा लिखा है और सेकंड कैरेक्टर डिस्टिंग्विश करने के लिए मैंने कलर नहीं यूज किया. ये देखो, दिस इज अवर नॉर्मल. टाइट करना है तो ये वेरी टाइट करना है तो बहुत ही एक दूसरे में फंस जाएंगे लेटर्स जो है. मैंने वेरी लूज रखा था, ये लूज है, और अपना ये नॉर्मल है. मैंने जानबूझ के उसको वैसा रखा था सो दैट इट शुड बी डिस्टिंग्विश्ड. आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए उसको वैसा रखा था पहले कैरेक्टर से दूसरा, और सक्सेसिव कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. हम नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं. इन्फ्लोरेसेंस अम्बेल सिंपल और कंपाउंड. फ्लावर स्मॉल एंड सम ज़ाइगोमॉर्फिक. अभी हमने देखा था फ्लावर छोटे हैं लेकिन ज़ाइगोमॉर्फिक है, एपिगाइनस है. उसके बाद देखते हैं कैलिक्स गैमोसेपेलस इन मोस्ट ऑफ जनरा. Number of sepals and petals is fixed, that is 5. Stamens 5 with versatile anther versatile है. Carpel 2 and syncarpus, 1 ovule in each locule. Reduction in number of ovule, that is 2, and the number is persistent in whole family. Presence of stylopodium. Fruit simple and cremocarp. Since the advanced character the primitive characters of the family has been regarded as most advanced family of Polypetalae. हमेशा ध्यान में रखो ये पॉलीपेटाली की एडवांस्ड फैमिली कही जाती क्योंकि प्रिमिटिव से बहुत ज्यादा एडवांस्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर इस फैमिली में है. अब रिमार्केबल एडवांस्ड टेंडेंसीज क्या है? स्मॉल साइज ऑफ फ्लावर, मतलब बिग फ्लावर्स प्रिमिटिव टेंडेंसी. Flower arranged in umbel or compound umbel, again advanced tendency. Flowers epigynous. Number of sepal petals are not more than 5 in any member. Carpel 2, syncarpus, bilocular, pendulous ovule. Characteristic feature, that is cremocarp type of fruit. So these are remarkably important advanced feature. उसके बाद affinities of Apiaceae. Origin and taxonomic position of family Apiaceae reveals that family is advanced in the scale of phylogeny and is the last of Polypetalus archiclemati. Its taxonomic position just after Myrtles and preceding Sympetalae or Gamopetalae has been adopted by most of taxonomists. अब ये तो आप पढ़ के समझना है आपको. हमने प्रिमिटिव कैरेक्टर देखे, एडवांस्ड कैरेक्टर देखे. Family is advanced in having honey secreting disc or stylopodium and protandrous nature of flower.
मैंने हमेशा आपको शुरू में बताया था कि हर फैमिली की आप सिंगल पेज नोट बनाओ, मतलब हर फैमिली के जितने मैक्सिमम आपको प्लांट मालूम है उतने प्लांट्स के बारे में आपको देखना है। उतने प्लांट्स अगर आपके ध्यान में रहे तो इट बिकम्स इजी टू रिमेम्बर ऑल अदर कैरेक्टर्स। तो दीज आर एफिनिटीज ऑफ एपीएससी। क्या कॉमन मेंबर्स के बारे में अभी देखने की जरूरत नहीं, हमने सभी कॉमन मेंबर्स देखे हैं। अभी these are the vegetative characters. उदाहरणार्थ रूट मध्ये इथं डॅकस कॅरोटा स्पेसिफिकली दिलेला आहे बिकॉज इट हॅज टॅपरूट ब्रांच समटाइम सोलन फॉर स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। एक्झाम्पल दिया आहे कॅरोट। कॅरोट मध्ये तुम्ही बघितलं असेल काही गाजर हे जाडसर वरच्या बाजूला टॅपरिंग टुवर्ड होत जातात आणि खूप जाड, काही अतिशय बारीक असतात फिंगर साइजचे। सो म्हणजे डायमीटर मध्ये यू शुड बी नोन विथ दिस। उसके बाद स्टेम क्लाइंबिंग इन सुडोकैरम सोलन नोड समटाइम रिज यूजुअली फिस्टुलर ग्लाउकस और ग्लैब्रस। तो कैरेक्टर आप इजीली अंडरस्टूड कर सकते। थोड़ा लीफ के कैरेक्टर की तरफ ध्यान दे दो। कॉलाइन एंड रामल, मैंने हमेशा बताया है रामल एंड कॉलाइन का मतलब होता है जब लीफ प्रेजेंट ऑन द मेन स्टेम एज वेल एज ऑन द लैटरल ब्रांच, देन दे आर कॉल्ड एज रामल एंड कॉलाइन। फॉर एग्जांपल मैंगो में आप देखते हैं मेन स्टेम पर भी लीफ है, लैटरल ब्रांच पर भी लीफ है। कई बार ऐसा होता है कि ओनली लीफ आर कॉलाइन, दैट इज दे आर प्रेजेंट ऑन मेन स्टेम ओनली, जैसे कि मेज में मेन स्टेम पर लीफ है सिर्फ, लैटरल ब्रांच है नहीं, एंड सो ऑन। सो दीज आर द इंटरेस्टिंग वेजिटेटिव फीचर्स ऑफ द फैमिली। अब फ्लोरल फीचर्स में, फ्लोरल फीचर्स को ज्यादा ये करने की मुझे अभी जरूरत नहीं लगती, बहुत सारे आपको पता है। मैं सिर्फ इसके एंड्रोसियम गाइनोसियम के बारे में बताऊंगा। एंड्रोसियम stamens 5 polyandrous, poly means many, inserted under the disc, anthers diathecus, diathecus मतलब 2 एंथर लोब है। वर्सटाइल है, इंट्रोज फिलामेंट लॉन्ग इक्वल इन लेंथ, बेंट इन बड बट अल्टीमेटली स्प्रेडिंग आउट। गाइनोसियम के बारे में देखो, बायकार्पेलरी सिनकार्पस, इंफीरियर bilocular with single pendulous ovule in each locule, anterior posteriorly placed, axial placentation axial है, stigma 2 on the top of pori and epigynous glandular stylopodium is present। मैं बार बार स्टाइलोपोडियम, सीजोकार्पिक, क्रीमोकार्प ये वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि आप ध्यान में रखें कि these are the interesting feature of this family। seed endospermic, pollination entomophilous, that is through insect, due to nectar, scent and protandrous nature of flower। तो these are the interesting features of this family। आपके लिए मैंने कुछ फोटोग्राफ्स नेट से डाउनलोड किए हुए लगाए हैं। पहला देखो, फ्लावरिंग ट्विग, मतलब यहाँ आप इन्फ्लोरेसेंस देखेंगे। कौन से टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है ये? अम्बेल। नॉट ओनली अम्बेल बट इट इज अम्बेल ऑफ अम्बेल और कंपाउंड अम्बेल। आप ध्यान में ले लो, इसमें से हर कोई यूनिट अम्बेल है और बहुत सारे अम्बेल का एक अम्बेल बना हुआ है, इसलिए इट इज अम्बेल ऑफ अम्बेल और इट इज कंपाउंड अम्बेल। यू गेट इट? यस सर। उसके बाद धनाडाळ तुम्ही बघितलेले आहे, क्रीमोकार्प टाइप ऑफ फ्रूट। धण्यावरती तुम्ही बघितलं असेल व्हर्टिकल लाईन्स असतात आणि आतमध्ये तुम्हाला सो कॉल्ड एम्ब्रियो और कॉटिलिडॉन आर ऑब्जर्व। सो यू कैन ऑब्जर्व दिस वन। उसके बाद आपने धनिया में देखा होगा कि सेंट्रल फ्लावर जो है वो अलग है और पेरिफेरल फ्लावर जो है वो अलग है। तो यू कैन ऑब्जर्व द सेंट्रल एंड पेरिफेरल फ्लावर। पेरिफेरल फ्लावर में सिमेट्री जो है वो एक्टिनोमॉर्फिक होती है, लेकिन सॉरी, सेंट्रल फ्लावर में एक्टिनोमॉर्फिक होती है लेकिन पेरिफेरल फ्लावर में सिमेट्री इज जाइगोमॉर्फिक। मैं आपको अगर चाहे तो और एक जगह पे सेंट्रल और पेरिफेरल फ्लावर्स के बारे में बताता, जस्ट मिनट। क्या आप लोग देख रहे हैं? फोटोग्राफ देख रहे हैं? यस सर। ओह, कहाँ गया फोटोग्राफ? ठीक है, फोटोग्राफ में देखो, ये फ्लावर, ये फ्लावर, ये फ्लावर, ये फ्लावर, ये फ्लावर, जो
ये हो गए हैं, ब्लूमिंग हुआ है, ये पेरिफेरल फ्लावर्स है। सेंटर के फ्लावर ये जो देख रहे हैं ये सेंटर के फ्लावर है। तो सेंट्रल एंड पेरिफेरल फ्लावर्स इन केस ऑफ दिस फैमिली आर ऑब्जर्व। उसके बाद फ्लावर का एलएस और फ्लावर, उसके साथ साथ फ्लोरल डायग्राम भी यहाँ दी है। और ये फोटोग्राफ मैं थोड़ा एनलार्ज करता हूँ क्योंकि ये जरूरी वाला फोटोग्राफ है। और इसमें आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखो, सिरकोट है, फ्रूट वॉल है, एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म है, कार्पोफोर है, देन डबल अकीन स्टाइल्स दैट इज स्टाइलोपोडियम दिख रहा है। सो दीज आर द इंटरेस्टिंग फीचर्स ऑफ दिस फैमिली। ये इस फैमिली के इंटरेस्टिंग फीचर्स है। मैं हमेशा किसी भी फैमिली के लिए ये कुछ रेफरेंसेस और वीडियो लिंक्स देता हूं, लेकिन आज मैंने कुछ भी नहीं दिया, मैंने सिर्फ वीडियो दिखाया है। शायद मुझे लगता है 12:30 बजे 1 घंटा हुआ है। हम 5 मिनट का ब्रेक लेते और फिर कंटिन्यू करते हमारी नेक्स्ट फैमिली, दैट इज फैमिली एस्टरेसी। जस्ट मिनट। आप लोगों को दिख रहा है? हेलो। यस सर। मैं एक 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, और अगर हो सके तो ब्रेक के टाइम में हम लोग जिनको देखना है वो देख सकते हैं। मैं कुछ स्लाइड्स बोर्ड पे छोड़ रहा हूँ, देख लो। एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर से हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? हेलो। Yes, sir. सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक लेंगे।
हाँ, हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, sir. So I think we should continue to next. हमने अभी अभी फैमिली एपीएससी खत्म की थी, तो इन आवर मॉड्यूल नंबर 4 अगर डिफरेंट फैमिलीज जो हम देख रहे हैं उनकी क्लेड्स देखे, तो एनिथा ग्रेड से हमने 3 देखे थे, एम्बोरिलेसी, निम्पिएसी, हिडाइथिलेसी। फिर मैग्नोलिड से हमने एक देखी थी फैमिली, दैट इज मैग्नोलिएसी। फिर मोनोकॉट के 2 फैमिलीज देखे थे, दैट इज एरिकेसी और कॉमेलिनॉइड्स में से एरेसी। देन यू डाइकॉट से पपावरेसी, कोर यू डाइकॉट से अमरेंथेसी, यूरासिड 1 से फिर अमरेंथेसी सेम, यूरासिड 2 से मालवेसी, एस्टरिड से सेपोटेसी, यू एस्टरिड से जंसिनेसी, एक्यांथेसी और जंसिनेसी, फिर यू एस्टरिड 2 से एपीएसी। और अभी हम वन ऑफ द एडवांस्ड फैमिली देखने जा रहे हैं, दैट इज एस्टरेसी। शायद आप सभी लोगों को पता होगा कि एस्टरेसी इज सपोज टू बी वन ऑफ द इंटरेस्टिंग फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्म। उसको इंटरेस्टिंग इसलिए बोला जाता कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दिस फैमिली आर कंपैरेटिवली डिफरेंट एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड करने के लिए भी डिफिकल्ट होते हैं। मेनी टाइप्स फ्लावर्स आर स्मॉल एंड दिस फैमिली इज वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, एंड दैट्स व्हाई एस्टरेसी इज इंपॉर्टेंट फैमिली। क्या आप लोगों ने इसके पहले एस्टरेसी फैमिली देखी है, सुनी है, देखी है, पढ़ी है? हेलो हेलो। एस्टरेसी इसके पहले शायद आपने ड्यूरिंग ग्रेजुएशन भी पढ़ी होगी, सो आई थिंक इट शुड नॉट बी मोर डिफिकल्ट एस्टरेसी जाने की जरूरत नहीं है। शायद मुझे लगता है कि बेसिक 2 में अपने एस्टरेसी पढ़ी है। कोई एग्जांपल बता सकते हैं एस्टरेसी के? ट्रायडेक्स प्रोक्युम्बेन्स और कंबरमोडी किंवा कुडकुडी म्हणतात। यस, व्हाट इज द हैबिट ऑफ ट्रायडेक्स? हॅलो, ट्रायडेक्सची हॅबिट काय आहे, कोणी सांगू शकते? हॅबिट जर बघितली तर त्याला म्हणतो आपण प्रोक्युम्बंट हर्ब। प्रोक्युम्बंट हर्ब का मतलब है कुछ पोर्शन स्टेम का जो है रनिंग पैरेलल टू ग्राउंड एंड रिमेनिंग इज अबव, एंड दैट इज नोन एज प्रोक्युम्बंट हर्ब। चाहे तो मैं आपको प्रोक्युम्बंट हर्ब का ये दिखाता हूं, जस्ट मिनट। प्रोक्युम्बंट हर्ब, मैं जानबूझ के आपको प्रोक्युम्बंट हर्ब, देखो जैसे भी मैंने प्रोक्युम्बंट हर्ब पोर्शन डायग्राम डाला, वैसे ही उसने फोटोग्राफ कौन से दिए, दैट इज ऑफ ट्रायडेक्स। मतलब ट्रायडेक्स में आपने देखा होगा कि कुछ पोर्शन जो है रनिंग पैरेलल टू ग्राउंड और बाकी इन्फ्लोरेसेंस वाला पोर्शन जो है, फ्लावर वाला जो पोर्शन है वो खड़ा, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्रोक्युम्बंट हर्ब। चलो नेक्स्ट, और कोई बता सकता है? चलो ये ठीक बताया ट्रायडेक्स। नेक्स्ट कौन सा? एनीबॉडी? हेलो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जनरा फ्रॉम एस्टरेसी बताओ। हेलो, एस्टरेसी का दूसरा कोई भी जनरा? क्रिसैंथेमम भी है। हाँ, यस, क्रिसैंथेमम किंवा शेवंती, बरोबर आहे। सो युअर बेस्ट नोन प्लांट मे बी क्रिसैंथेमम, शेवंती।
There are hundreds of varieties of chrysanthemum are available. और कुछ? सर डेजी का भी फ्लावर होता है ना? डेझी का भी फ्लावर होता है. आपण तुम्ही ज्याला झेंडू म्हणता, that also belongs to Asteraceae. Even our sunflower belongs to Asteraceae. अच्छा, एस्टर का मतलब क्या होता है? Anybody? हेलो, एस्टर का मतलब क्या होता है? सांगा. स्टार शेप. स्टार. तुम्ही झुलॉजी मध्ये काही प्राणी पण बघितले? इकायनोडर्मेटा. हाँ, इकायनोडर्मेटा. इकायनोडर्मेटा, उसमें एक स्टार फिश करके. स्टारफिश. स्टार का मतलब होता है एस्टर का मतलब होता है स्टार. सो दिस वन फैमिली इज नोन एज एस्टरेसी. पुराना नाम क्या था इस फैमिली का? हेलो, कंपोजिटी. Composite. कंपोजिटी. Because of its composite type of inflorescence, it has been known as family Composite. मैं आपको फिर से बताता हूँ. पुराना नाम Composite, नया नेम Asteraceae. So this family is represented by large number of plants which are known to you. आपको पता है ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं, हम उसके बारे में थोड़े बाद में बात करते हैं. क्या आपने प्लांट का नाम सुना है? पार्थेनियम. पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस किंवा मराठीमध्ये आपल्याकडे गाजर गवत म्हणतात, किंवा काही ठिकाणी चटक चांदणी म्हणतात, किंवा काही ठिकाणी काँग्रेस गवत म्हणतात, एटसेट्रा. So as far as this Parthenium considered one of the important poisonous weed of country, and as far as this Parthenium considered obnoxious weed म्हणून समजलं जातं. कदाचित तुम्हाला ऐकून माहिती असेल नसेल तर बघा, obnoxious म्हणतोय म्हणजे त्याला अलर्जिक प्रॉपर्टीज आहेत. काही केसेस मध्ये पार्थेनियमची अलर्जी लार्ज स्केल वरती लोकांना दिसते. अलर्जीच्या बाबतीत तुम्हाला माहिती असेल, कशाचीही कोणालाही अलर्जी असू शकते. माझ्या बघण्यामधला एक ग्रस्त होता, त्याला ट्यूबलाइटची अलर्जी होती. ट्यूबलाइटची अलर्जी याचा अर्थ काय? ट्यूबलाइटच्या प्रकाशात तो आला की त्याच्या अंगावरती असे फोड यायचे मोठे मोठे. So you can imagine what different types of allergy are. तर पार्थेनियमच्या अलर्जी बद्दल मुद्दाम सांगतो. In the 1990s there are certain samples of baby milk has been tested. काही मुलांच्या मध्ये शरीरावरती रॅशेस येणं, फुटकुळ्या उठणे, फोड उठणे, किंवा ॲबनॉर्मल डिसीजेस दिसायला लागले, स्किन डिसीजेस, तेव्हा त्यांचं फीडिंग ज्या मिल्क वरती केलं जायचं ते ब्रेस्ट फीड म्हणजे ब्रेस्ट मिल्क टेस्ट केलं गेलं. त्यावेळेला त्या ब्रेस्ट मिल्क मध्ये पार्थेनियमचे पोलन्स दिसले. इवन in milk of sheep and goats also Parthenium pollens are available. And तुम्हाला माहिती असेल, most of time pollens shows presence of good quantity of a protein, and that's why these pollens in some cases pollens are allergic. ठीक आहे, आपण त्याच्याकडे जाणार नाही. नेक्स्ट मला प्लांट कोण सांगतंय? एनीबडी? हॅलो, नेक्स्ट प्लांट कोण सांगतंय? नाही? हॅलो, नेक्स्ट प्लांट नाही माहिती? आणि सगळ्यात महत्वाचं सनफ्लावर विसरले तुम्ही. हेलो सर ते सांगितलं होतं तुम्ही. हाँ, सनफ्लावर के बारे में जरूरी इसलिए ध्यान में रखो कि सेंट्रल पोर्शन जो है जहां सीड बनते हैं दैट इज द बाइसेक्सुअल फ्लावर विच इज नोन एज अ डिस्क फ्लावर, और पेरिफेरल फ्लावर जो है दीज आर नोन एज अ रे फ्लावर और दे आर नोन एज अ रे फ्लोरेट्स. सो इन सनफ्लावर इवन इफ आपण याला फ्लावर म्हणत असलो तरी इट इज अ इन्फ्लोरसन्स. ध्यान में आ रहा है? क्रिसैंथेमम के बारे में भी इट इज आल्सो इन्फ्लोरसन्स. आपण आता इथं लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर्स बघतोय, आणि हे सगळे फ्लावर्स दीज आर रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ फॅमिली एस्टरेसी. अर्थात यातले बरेचसे फ्लावर्स तुम्ही वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या पद्धतीनं कधी ना कधी बघितले असतील, बट यू माइट बी अननोन. चला आणखी एक प्लांट सांगतो. करडई माहित आहे तुम्हाला? हॅलो हॅलो,
करडई माहित आहे का? कार्थेमस टिंक्टोरियस किंवा करडई माहित आहे का? बर करडई सर हिंदी में मैम, हाँ? सर हिंदी में। हिंदी में करडई हिंदी में मुझे आइडिया नहीं है, हम कोशिश करते हैं कार्थेमस का हिंदी नाम ढूंढने की। सफोला ऐकून माहित आहे? सफोला, यस सर। सफोला ऑइल खाता? येस हाँ सर. सर। सफोला ब्रँड नेमनं जे मार्केटमध्ये ऑइल येतं त्याच्यामध्ये इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरंट ऑइल, बट मेजर ऑइल इज करडई. करडई इज नथिंग बट सैफफ्लावर, दैट इज कार्थेमस टिंक्टोरियस. जस्ट अ मिनट, हम इसको ढूंढते फ्लावर्स ऑफ इंडिया में। तो फ्लावर्स ऑफ इंडिया, एंड फ्लावर्स ऑफ इंडिया में हम कार्थेमस टिंक्टोरियस, क्या हुआ? चलो टिंक्टोरियस नहीं होगा तो सिर्फ कार्थेमस है क्या, देखते हैं। यस, कार्थेमस है। कार्थेमस टिंक्टोरियस था लेकिन अपना स्पेलिंग गलत था। चलो, बोटैनिकल नेम कार्थेनस, बोटैनिकल नेम कार्थेमस टिंक्टोरियस, फैमिली एस्टेरेसी, सिनोनिम कार्डस टिंक्टोरियस, कॉमन नेम में सैफफ्लावर्स, फॉल्स हिंदी में कुसुम बोलते। हेलो हेलो ज्योति, यस सर। किसी ने पूछा था मुझे अभी उसका हिंदी नाम क्या है? इट्स हिंदी नेम इज हाँ सर। कुसुम. सो कार्थेमस आल्सो बिलोंग्स टू फैमिली एस्टेरेसी. क्या आपको पता है सूरजमुखी के साथ साथ आजकल लोग कार्थेमस भी लगाना शुरू कर देते, एंड वन ऑफ द रीजन बिहाइंड दिस इज कार्थेमस के फ्रूट्स के ऊपर स्पाइनी स्ट्रक्चर्स है, और दैट्स व्हाई डोमेस्टिक एनिमल्स आर नॉट गोइंग टू विजिट दिस प्लांट. दूसरी बात, कार्थेमस पर वैसे डिसीजेस भी कम आते हैं, एंड दैट्स व्हाई सैफफ्लावर और कार्थेमस इज कल्टीवेटेड ऑन द लार्ज स्केल. यहाँ थोड़ा मेडिसिनल यूजेस के बारे में भी कार्थेमस के दिया है, शायद आपको पता है. कार्थेमस के फ्लावर्स प्लांट कल्टीवेट करते हैं, दैट इज फॉर ऑयल. Taken hot safflower tea produced strong perspiration and has thus been used for cold and related elements. It has also been used at a time for its soothing effect in case of hysteria, such as that associated with chlorosis. Powdered seeds made into poultice used to allay inflammation and to warm, and after childbirth flowers of this herb is useful for jaundice. चलो हम ये भी नहीं देखते, और कोई बता सकता है? हेलो, और कुछ यूजेस और कुछ मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली बता सकता है? मैंने जानबूझ के आपको क्या किया है कि मैंने कार्थेमस या कोई भी प्लांट ना बताते हुए, कोई भी फोटोग्राफ ना बताते हुए मैंने डिस्कशन शुरू किया था, एंड रीजन बिहाइंड इट इज यू शुड बी वेल अवेयर टू फाइंड आउट क्या इस फैमिली के कौन कौन से प्लांट है, ये आपको फाइंड आउट करना था. चलो हम देख लेते हैं अभी. तो मैंने अभी फैमिली एस्टेरेसी या कंपोजिटरी लगाई. आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने कोई एक फ्लावर में बहुत सारे अलग अलग टाइप, कलर, साइज, शेप के फ्लावर इकट्ठे किए हैं. दिस वन अगेन कार्थेमस भी है, सनफ्लावर भी है. सो उसका एक फोटोग्राफ मैंने यहाँ जानबूझ के लगाया है. अब मैं विदाउट गोइंग टू डिस्कशन हम कुछ फोटोग्राफ्स पहले देख लेते. क्या आपने पहले देखा डिस्क फ्लावर? पहला फोटो जो है डिस्क फ्लावर का. डिस्क फ्लावर इज सेंट्रल और पेरिफेरल जो रहते हैं दीज आर कॉल्ड एज रे फ्लोरेट. सगळ्यात खाली इथं बघा कॉस्मॉसचं फ्लावर आहे. जस्ट मिनिट, इथं तुमच्या समोर कॉस्मॉसचं फ्लावर आहे. कॉस्मॉस मध्ये इथं तुमच्या लक्षात येईल सेंटर मधला जो आहे तो डिस्क फ्लोरेट, आणि पेरिफेरीचे जे आहेत रे फ्लोरेट किंवा बायडेन्स. बायडेन मध्ये बघा, बायडेन पॉवेल्स म्हणतात.
बायडेन मध्ये सेंट्रल फ्लावर्स जी आहेत ती डिस्क फ्लोरेट आणि पेरिफेरल फ्लावर आहेत ती रे फ्लोरेट. किंवा कॅलिस्टिपस मध्ये पण बघा सेंट्रल डिस्क फ्लोरेट, पेरिफेरल रे फ्लोरेट. क्रिसॅन्थेमम मध्ये पण सेम सेंट्रल डिस्क फ्लोरेट अँड पेरिफेरल रे फ्लोरेट. डिड यू गेट इट? हेलो. यस सर. ओके. अब एक कॉर्नर में मैंने एक प्लांट का फोटोग्राफ Yes, sir. दिखाया है और यहाँ लिखा है आर्टिमेसिया पैलेंस. क्या आप में से किसी को ये प्लांट के बारे में पता है? आर्टिमिसिया पैलेंस. हेलो. सर नाही सर. नाहीये. तुमच्यापैकी कोणी जर देहू आळंदीला गेला असेल तर बघा देहू आळंदीला समाधीवर ऑफर करण्याकरता या आर्टिमेसिया पॅलेन्सचे फ्लावर्स मिळतात. आर्टिमेसिया फ्लावरला मराठीत म्हणतात दवना, द वळणा न मोठा. फार सेंटेड फ्लावर्स असतात याची अँड इट इज नोन ॲज अ दवना. कदाचित तुम्हाला माहिती असेल लहान मुलांना पाळण्यात घालतात त्या पाळण्यावरती ह्या आर्टिमेसियाचे फ्लावर्स ठेवतात आणि रिझन बिहाइंड दिस इज दीज आर अँटी इन्सेक्टिसाइडल म्हणजे इन्सेक्ट पासून बचाव करायला कारणीभूत ठरतात म्हणून. तुमच्यापैकी काही लोकांनी अनुभवलंय का बघा ग्रामीण भागामध्ये शेतात गेल्यानंतर शेतात जे काही वाढलेलं रान शेत किंवा प्लांट्स असतात त्याच्यामुळे शेतामध्ये लार्ज स्केल वरती मच्छर असतात त्यातल्या त्यात गवत असतं तिथं. हेलो. हेलो. यस सर. नहीं तो मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूँ. आपके इंस्टीट्यूट के अपने इंस्टीट्यूट के गार्डन में जैसे आप डिपार्टमेंट से बाहर निकलते वैसे आपके लेफ्ट हैंड साइड को ग्रीन हाउस है और राइट हैंड साइड को छोटा सा ओपन पैच है. उस ओपन पैच में आप कभी भी जाके देखो बहुत मच्छर काटते हैं. तो जब मच्छर काटते हैं तो बहुत मच्छर काटते हैं Yes, और sir. फील्ड में अगर जाना है तो रुरल एरिया में लोग यूज क्या करते देखो झेंडूची पानं असतात ती क्रश करतात आणि अंगाला लावतात माहिती असेल तुम्हाला. किंवा तिखाडीचं गवत असतं त्या तिखाडीच्या गवतापासून मिळणारं ऑइल दॅट इज ऑल्सो Yes, sir. टू बॉडी अँड दॅट्स वाय इट इज अ इन्सेक्ट रिपेलंट. तसं मी आता इथे एक प्लांट सांगितलं आर्टिमेसिया पॅलेन्स. आर्टिमेसिया पॅलेन्स म्हणजे दवना. इट बिलॉंग्स टू सेम फॅमिली. मध्ये दोन फोटोग्राफ जे आहेत तो आहे एजिरेटम कोनिझॉइडिस. कदाचित तुम्ही बघितलं असेल शेतामधलं आणखी एक कॉमन वीड कोनिझॉइडिस एजिरेटिम कोनिझॉइडिस. एजिरेटिम कोनिझॉइडिसला मराठीत म्हणतात गंगुतार. व्हॉटेवर इट मे बी वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या नावानं ओळखलं जात असेल. त्याच्यानंतर नेक्स्ट बघा बॅचेरिस. बॅचेरिस मध्ये फ्लावरचं फक्त क्लस्टर दिसतोय. बिडेन्स एक्झाम्पल एक्सप्लेन करण्याची गरज नाही. त्याच्यानंतर नेक्स्ट सिसुलिया एक्झिलॅरिस. सिसुलिया एक्झिलॅरिस क्या आप लोगों ने देखा है ये फ्लावर? जयंत. 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 जयंत नहीं है. दूसरा कौन है? सिसुलिया एक्झिलॅरिस देखा है? किसी ने भी देखा नहीं है? सिसुलिया एक्झिलॅरिस साधारण पाणथळ जागी पाण्यातून वर उगवून येणाऱ्या प्लांट मध्ये हा प्रकार दिसतो. सिसुलिया एक्झिलॅरिस. मैं चाहे तो आपको और सिसुलिया के फोटोग्राफ दिखाने की कोशिश करता. जस्ट अ मिनट. CAESULIA एक्सिलैरिस AXILLARIS सिसुलिया एक्सिलैरिस. चलो. पिंक नोड फ्लावर. इट इज आल्सो नोन एज पिंक नोड फ्लावर. क्या आपको अभी फोटोग्राफ दिख रहा है? हेलो. यस. यस सर. तो ये जो सिसुलिया हाँ सर. सिसुलिया एक्झिलॅरिस आहे कदाचित तुम्ही हे फ्लावर पाण्यात बघितलेले असेल पण आता तुमच्या लक्षात येत नाही. दुसरी गोष्ट मी बऱ्याच वेळा जयंतला विचारतो रिझन बिहाइंड दिस. जयंत लिव्हिंग इन अ काय म्हणू आपण विलेज एरिया त्याच्यामुळे बऱ्याच वेळा त्याला प्लांट माहिती असण्याचे चान्सेस असतात. आता तुम्ही म्हणाल लगेच सर जयंतला विचारतात आम्हाला विचारतच नाहीत. जस्ट मिनट. सिसुलिया एक्झिलॅरिस. हम कुछ इमेजेस सिसुलिया के देखते हैं सो दैट इट इज इझी. आता बघा कोणाला आठवतंय का सिसुलिया बघितलेला असं पाण्याच्या भोवती म्हणजे प्लांटच्या Yes, sir. भोवती फेस आल्यासारखं दिसतं. Yes, sir. Yes, sir.
ग्रुप मध्ये असतात खूप सारे. ग्रुप मध्ये असतात आणि त्याला पाण्याच्या भोवती असा फेस आल्यासारखं दिसतं. जयंत व्यतिरिक्त कोणी बघितलंय, आठवतंय? हॅलो, हाँ सर। जयंत व्यतिरिक्त तुम्ही कोणी बघितलंय? है बघा, सिसोलिया एक्सिलरीज, बहुत सारे प्लांट्स इस फैमिली के हम लोगों ने देखे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है। मैं फिर से बताता हूँ कि दिस फैमिली इज वेरी इंटरेस्टिंग, सबसे इंटरेस्टिंग ये फैमिली है, लेकिन हमें प्लांट्स के बारे में पता नहीं रहता। Yes, sir. चलो, हम अपना फोटोग्राफ जो देख रहे थे उसको कंटिन्यू करते। फिसुलिया एक्सिलरिस हो गया। कैलेंडुला के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आपने बहुत बार बुके में भी कैलेंडुला के फ्लावर्स देखे होंगे। त्याच्यानंतर कॅलिस्टिपस माळरानावर बघितलं असेल, कार्थॅमस म्हणजे करडई, ही करडईचा मॅच्युअर इन्फ्लोरेसन्स है, कार्थेमस फ्लावर है करडईचं। क्रिसैंथेमम के बारे में बताने की जरूरत नहीं, मैंने आपको बताया देयर आर थाउजेंड्स ऑफ हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ क्रिसैंथेमम आर अवेलेबल। तुम्ही क्रिसैंथेममचा फ्लावर किंवा इन्फ्लोरेसन्स जास्तीत जास्त मोठा किती बघितलेला आहे? एनीबडी? हॅलो जयंत, जयंत, ज्योति, क्रिसॅन्थेममचा इन्फ्लोरेसन्स जास्तीत जास्त किती सेंटीमीटर डायमीटरचा बघितलेला आहे? आतापर्यंत नॉर्मल बघितलं सर, जेवण नॉर्मल. किती? 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, किती? सर एक मिनट, मेजर करके मेजर करके बताए। मेजरमेंट नका घेऊ, अंदाज, अंदाजे सांगा ना. हा? अंदाजे सांगा. हा? अरे एक मिनिट, अंदाजानं सांगा मी म्हणत होतो, कारण क्रिसॅन्थेमम मध्ये साधारणपणे 1 ते 2 मिलीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर एवढाच इन्फ्लोरेसन्स बघायला मिळतो. जस्ट मिनिट, जस्ट मिनिट. हाँ सर बोला ना, अभी भेजा है। एक सेकंड बघ। हाँ हाँ हाँ, मैं पढ़ के बताता, 1 मिनट। हाँ हाँ, आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, एक जरूरी, इसके लिए मैं रुका हूं। मैं फोटोग्राफ देख लो तब तक। ले 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 उली उली। सर कुछ फोटोग्राफ देखेंगे।
ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, नहीं फिर भी मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने उनको हैंडल कर दिया क्या? नहीं, आपने हैंडल कर दिया क्या? हॅलो, प्रकल्प 2 मध्ये लोक टाटाच्या विद्यापीठाच्या हे एक्सपर्ट उपस्थित होते, अनुपस्थित काय होते ते लिहू नका. हाँ, फोटोकॉपी घेतली ना, वैसे नहीं बोलना चाहिए, काफी कुछ भी नहीं उसमें सर, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक क्वेश्चन होता है आपको यहाँ पे चेक कर सकते हैं, मसले पे जाओ. हाँ नहीं करते, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू. ओके, बिल्कुल. और वो खुद प्रिंसिपल है तो हो गया. हाँ, राइट. हाँ, तो उसको काउंट नहीं करेंगे और वैसे भी वो भी प्रेजेंट है. ठीक है, कोई इशू नहीं है. हाँ, हो गया, खत्म. कब तक निकल रहे? ठीक है, मैं आराम से फोन करता. हाँ. हेलो. यस सर. हाँ, मैंने आपको अभी लास्ट क्वेश्चन पूछा था कि क्रिसैंथेमम में फ्लावर का डायमीटर इन्फ्लोरेसेंस का आपने कितना देखा है. मैंने जानबूझ के कोशिश की थी. मैंने यहाँ नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, NBRI, अपनी सेंट्रल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहां का फोटोग्राफ मैं ढूंढ रहा था. एक्चुअली ये जो आप दिख रहे हैं, ये डायमीटर कितना हो सकता है? हेलो जयंत. हाँ सर. ये इन्फ्लोरेसेंस जो दिख रहा है उसका डायमीटर कितना हो सकता है? 2 सेंट. अरे नहीं ना, 2 सेंटीमीटर कैसे बोल सकते हैं? देखो, कम से कम ये इट इज मोर देन 6 इंच. 6 इंच से ज्यादा है. ठीक है, तो यू जस्ट इमेजिन हाउ मच डायमीटर इन केस ऑफ क्रिसैंथेमम इज. क्रिसैंथेमम में डायमीटर कितना हो सकता है? 6 इंच तक. मैंने जानबूझ को आपको ये फोटोग्राफ दिखाया है. आपको ये क्रिसैंथेमम वैरायटीज दिख रही? यस सर. और इनका डायमीटर 6 से 8 इंच तक है. एंड दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ आवर NBRI या नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ. दे हॅव प्रोड्यूस्ड सच अ ह्यूज व्हरायटीज. म्हणजे हातात दाखवायचं झालं तर 2 हाताची ओंजळ ज्याला म्हणतात तुम्ही, इतके मोठे फ्लावर्स बघायला मिळतात. येतंय लक्षात? सो दिस वन इज क्रिसैंथेमम. मैंने आप लोगों को इसी के लिए क्रिसैंथेमम पर हम रुके थे. उसके बाद में देखो, क्रिसैंथेमम के बाद में कॉस्मोस के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है. डहालिया का अभी किसी ने जिक्र किया था, डहालिया. उसके बाद देखते डेजीचे रोड साइडला बऱ्याच वेळेला डेजीचे फ्लावर दिसतात किंवा माळरानावर डेजीचे फ्लावर दिसतात. फिर गैलार्डिया के बारे में भी बताने की जरूरत नहीं है. गैलार्डिया आल्सो इम्पोर्टेंट मेंबर फ्रॉम दिस फैमिली. और खास करके गार्लैंड्स में, नहीं तो बुके में फ्लावर्स हमेशा गैलार्डिया, जरबेरा,
गाथानिया इनके दिखते हैं। उसके बाद गाथानिया, कैलिस्टेपस, कार्थेमस, इन्यूला, ल्यूकोमेरिस। उसके बाद नीचे लैक्टुका दिया है। क्या आप लोगों ने लैक्टुका का प्लांट देखा है? लैक्टुका सटाइवा या पाथरी, स्वांकस। हेलो, अपना कौन है? ज्योति, ज्योति, यस सर। लैक्टुका सटाइवा प्लांट देखा है आपने? लैक्टुका सटाइवा, नहीं तो इसको मराठी में बोलते हैं पाथरी। आपने ये प्लांट देखा है? अरे हाँ सर। आपल्या ह्याच्यामधला अगदी कॉमन प्लांट आहे लॅक्टुका सटाइवा, और इट इज ऑल्सो नोन ॲज पाथरी। अर्थात ह्या सगळ्या ऑर्नामेंटल व्हरायटीज आहेत, फक्त हा त्यातल्या त्यात वाईल्ड व्हरायटीशी रिलेटेड दिसतोय। जस्ट मिनिट, तेवढा एकच हाच फक्त वाईल्ड व्हरायटी आहे, बाकी सगळ्या ऑर्नामेंटल व्हरायटीज आहेत। वन मोर मैं बताता हूं आपको, सॉन्कस, SONCHUS, सॉन्कस। क्या आप लोगों ने सॉन्कस का प्लांट देखा है? हेलो, हाँ सर। सॉन्कस बघितलं असेल, याचे छोटे छोटे सीड्स उडून जाताना दिसतात। आपल्या कॅम्पस मध्ये, प्रिमायसेस मध्ये पण हे प्लांट बघायला मिळतं। लक्षात घ्या, हे काटेरी नाही आहे। जस्ट फ्लावर बघितली तर थोडीशी आपल्या ह्याच्यासारखी, मगाशी बघितलेला जनरा कोणता, कार्थेमस, कार्थेमस सारखी फ्लावर, आणि हे कॉटनी हे दिसतात। सो दैट आल्सो बिलोंग्स टू सेम फैमिली। चलो हम नेक्स्ट देखते, मतलब सॉन्कस तक हम आए थे। कार्थेमस, कॉस्मोस, डहालिया, डेजी, गेलार्डिया, गाजानिया, जर्बेरिया, कैलिस्टेपस, कार्थेमस, इन्यूला, ल्यूकोमेरिस, लैक्टुका, प्रोविस्टा। तो इतने जनरा के बारे में मैंने कम से कम आपको अभी अभी बताया। फिर हम जनरा की तरफ आते। आप लोग सभी सुन रहे हैं ना? Yes, हाँ sir. सर। हाँ, पहला देखते हैं एजिरेटम कोनिझॉइडिस। पहिला जनरा मैंने बताया एजिरेटम कोनिझॉइडिस, किंवा मी गंगूतार म्हणून सांगितलं होतं। देन अर्निका, अर्टिमेसिया, अर्टिमेसिया मीन्स अर्टिमेसिया पॅलेन्स किंवा दौना। उसके बाद टैरागन, वार्मवुड, ये नहीं, एस्टर, एस्टर के फ्लावर्स आपने देखे हैं। उसके बाद प्लेक्टोसिपेलस अमेरिकनस, वो भी आपको पता नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं आर्टिचोक। आर्टिचोक में शायद आपने जेरूसलेम आर्टिचोक करके शायद कभी नाम सुना होगा। आर्टिचोक बिलोंग्स टू फैमिली दैट इज एस्टरेसी। उसके बाद जनरा देखते आर्टिमेसिया, आर्टिमेसिया पैलेंस मैंने बताया था, दौना। उसके बाद नेक्स्ट जनरा है एस्टर, डहालिया, डेंडेलियन। क्या आपने डहालिया के फ्लावर देखे हैं? हेलो, हाँ सर। डहालिया के फ्लावर देखे हैं आपने? हाँ सर। जस्ट मिनट, मैं बताता हूँ। डहालिया, ये देखा है सर। डहालिया के फ्लावर्स आपने बहुत सारे देखे होंगे। चलो हम कंटिन्यू करते। नेक्स्ट जनरा कौन सा है पहले देख लेते। आज मैं सिर्फ इनको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। डेंडेलियन, ये तो आपको मालूम नहीं, इसके बाद आपको जो मालूम है उसमें से देख लेते। पार्थेनियम, पार्थेनियम अर्जेंटियम या पार्थेनियम हिस्टेरोपोरस, जिसको मैंने आपको बताया था कि पार्थेनियम को बोलते गाजर गवत, किंवा काही वेळा म्हणतात काँग्रेस गवत किंवा सटक चांदणी, विच इज वन ऑफ द कॉमन वीड ऑफ इंडिया। त्याच्यानंतर नेक्स्ट जनरा आपण याच्यामधला बघूया, तुम्हाला माहिती असणारा कुठला आहे, सॉलिडियागो कदाचित माहिती असेल। पार्थेनियम झाला, त्याच्यानंतर लॅक्टिका सटाइवा किंवा लेट्यूस। उसके बाद टॅजेटिस इरेक्टा म्हणजे मेरीगोल्ड, किंवा तुम्ही झेंडू म्हणता, टॅजेटिस। उसके बाद नेक्स्ट जनरा हम देखते हैं, आपको कुछ पता है तो हेलियांथस, हेलियांथस म्हणजे सनफ्लावर, किंवा हेलियांथस एनस, किंवा हेलियांथस ट्यूबरोसस, दैट इज सनफ्लावर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जनरा, आपको जो पता है झिनिया, झिनियाचे फ्लावर बघितलेत तुम्ही? Yes, sir. ZINNIA, ZINNIA, झिनिया। तो शायद आप लोगों ने झिनिया के भी बहुत सारे फ्लावर्स, बहुत सारी वैरायटीज आपने झिनिया की देखी होगी। सो दीज आर द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ फैमिली एस्टरेसी। नाउ
After studying or observing these photographs of different members, please remember Asteraceae is one of the advanced family of Asteraceae. Asteraceae is advanced family of a dicot or rather angiosperm. It is a worldwide or cosmopolitan in a distribution. Flowers are very small and many times these are converted to floret. जैसा मैं हमेशा बताता हूँ, ब्रेन की जगह हम गैंग्लियन बोलते हैं. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ अर्थवर्म, छोटा है करके गैंग्लियन, या बहुत अलग अलग नर्व सेल्स इकट्ठा होने के बाद बनता है, दैट इज ब्रेन. म्हणजे म्हणून इथं फ्लावरच्या ऐवजी आपण म्हणतो फ्लोरेट्स. सो फ्लोरेट्स आर रे फ्लोरेट अँड डिस्क फ्लोरेट. Then it shows special type of inflorescence, that is head or capitulum type of inflorescence. मी बघाशी बोलता बोलता तुम्हाला सांगितलं होतं क्रिसॅन्थेममच्या लीफ पासून पायरिथ्रिन नावचं इन्सेक्टिसाइड किंवा पेस्टिसाइड बनवलं जातं. किंवा मी बोलताना मगाशी सांगितलं होतं की शेतामध्ये ज्यावेळेला मच्छर चावतात त्याच्यापासून बचाव करण्याकरता बऱ्याच वेळेला लोक झेंडूची पानं क्रश करून हातावर किंवा शरीरावर रब करतात. That means it shows presence of some obnoxious odor. So these are the interesting characteristic features of this family. Asteraceae ची ही सगळे इंटरेस्टिंग कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स झाली. आता जरी ही इंटरेस्टिंग कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स असली ती आपण वन बाय वन थोडंसं बघू अँड फर्दर जाऊ. Family is commonly known as sunflower family. It is the largest family of a dicot comprising 950 genera and 20,000 species. पुन्हा लक्षात घ्या, 9,900 पेक्षा जास्त जनरा आणि 20,000 पेक्षा जास्त स्पेसीज, out of which 697 species occur in India. 20,000 पैकी जवळपास 1,000 स्पेसीज इंडियामध्ये आहेत. They are worldwide in distribution and abundant in tropics and in colder Arctic or alpine regions. म्हणजे याचा अर्थ तुमच्या लक्षात येईल, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, अल्पाइन सगळ्याच झोन मध्ये आहेत आणि म्हणून या फॅमिलीला वर्ल्ड वाईड डिस्ट्रीब्युशन और कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्युशन असं म्हटलं जातं. सो डिस्ट्रीब्युशन ऑफ Asteraceae इज कॉस्मोपॉलिटन. It also shows few of the plants which are mesophytic, xerophytic, as well as some are hydrophytic. And so this family is showing. पण कदाचित तुमच्या माहिती करता सांगतो, Asteraceae मध्ये ट्री टाइप ऑफ जनरा नाही. लक्षात येते? Yes, sir. Asteraceae मध्ये ट्री जनरा नाही. जस्ट मिनिट, हम यहाँ तक आए थे. सो यू हॅव ऑल्सो ऑब्झर्व फोटोग्राफ्स आणि यातले बरेचसे फोटोग्राफ तुम्ही स्वतः यापूर्वी बघितलेले आहेत, प्लांट्स बघितलेले आहेत. आता ओव्हरऑल जनरल कॅरेक्टरिस्टिक फीचर, मी नेहमी कधीही त्या फॅमिलीचे प्लांट मेन्शन केल्याशिवाय किंवा फोटोग्राफ बघितल्याशिवाय तुम्हाला पुढे जाऊ देत नाही किंवा मी घेत नाही. आता आपण कॅरेक्टर बघूया. डिस्टिंग्विशिंग किंवा इम्पॉर्टंट, मोस्टली हर्ब और श्रब और रेअरली ट्रीज. Asteraceae मध्ये ट्री जवळजवळ नाहीत, मी जवळजवळ म्हणतोय. लिव्स अल्टरनेट, रेअरली अपोजिट, एक्सटिप्युलेट, रेअरली स्टिप्युलेट. म्हणजे मोस्टली ते एक्सटिप्युलेट असतात, फारच रेअरली स्टिप्युल्स असतात. इन्फ्लोरेसन्स कॅपिच्युलम और हेड सराउंडेड बाय इन्व्होल्युकर ऑफ ब्रॅक्ट. इन्व्होल्युकर म्हणजे कव्हरिंग, म्हणजे त्याला हिरव्या रंगाचं असं कव्हरिंग असतं, हिरव्या कलरचं. रे अँड डिस्क फ्लोरेट. Flowers tubular or ligulate, म्हणजे ट्यूब लाइक किंवा लिग्यूल लाइक. Flowers bi or unisexual or outer male or female flowers. Pentamerous, actinomorphic or zygomorphic, कारण central flower actinomorphic, peripheral flowers zygomorphic. So this is the interesting feature in case of family Asteraceae. Corolla camopetalous, petals 5, stamens 5, epipetalous. Just a minute. कल शायद आप में से जयंत ने कुछ तो एक अपने ग्रुप पर एक ये डाला था. हेलो हेलो. Yes, sir. हाँ, आप लोग ये देख रहे हैं, शायद नेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन था. द फॉलोइंग डायग्राम A to D shows characteristic feature arrangement of stamen within a flower and Roman 1 to 4 enlist families.
तो क्या मैंने कल आंसर दिया था, जवाब दिया था जयंत? कल देखा, राइट था? हाँ सर। हाँ, तो मैं फिर से आज यहाँ आपको जानबूझ के दिखाता हूँ। जयंत ने अच्छा किया ताकि सब लोगों को पता चले हाउ द क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड। अब यहाँ देखो, ए में अगर आपने देखा तो दिस इज टिपिकल एग्जांपल इन केस ऑफ फैमिली मालवेसी। मालवेसी में आपको ऐसे मोनो एडाल्पस स्टैमेन दिखते हैं, हम उसको बोलते हैं मोनो एडाल्पस। सो A3 था आंसर। नेक्स्ट बी में देखो, यहाँ अगर आप काउंट करते हैं तो एक सिंगल और बाकी बचे हुए सब जितने भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। So 9 plus 1 condition means diadalpous condition, and such a type of diadalpous condition is observed in Papilionaceae or Fabaceae. So B का आंसर था 2। उसके बाद 3 नंबर 3 की डायग्राम जो है उसमें अगर देखा गया तो फिलामेंट 1 2 3 4 5 दिखते हैं, और ऊपर आप देखें तो 1 2 3 और ये 4th और 5th, मतलब चारों एंथरलोम कनेक्टेड है और फिलामेंट फ्री है। एंड दिस इज अ टिपिकल एग्जांपल इन केस ऑफ फैमिली एस्टरेसी। ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड एज सिनजिनेसियस स्टैमेन, इसको बोलते हैं सिनजिनेसियस। अब उसके बाद आखिरी वाला जो है, आखिरी वाले में एंथरलोब एज वेल एज फिलामेंट्स आर कनेक्टेड और ग्रुप्ड, and this one is known as Syn-Andrus condition, and in case of family Cucurbitaceae Syn-Andrus condition is observed। और इसके लिए शायद मैंने इसका एग्जांपल 3A दिया था ना जयंत? हेलो? हाँ सर। इसका एग्जांपल मैंने यहाँ दिया था कि एग्जांपल 3 मोनोएडाल्पस मालवेसी, डायएडाल्पस पैपिलियोनेसी, सिनजिनेसियस एस्टरेसी और Syn-Andrus cucurbitaceae। मैं फिर आपको बताता हूं कि थोड़ा सा इसमें से Syn-Andrus के डायग्राम की तरफ ध्यान दे दो। Syn-Andrus मींस ओनली एंड्रोसियम्स क्या होते हैं, अगर समझ लो ये 5 एंथर है तो ये 5 एंथर ऐसे फ्यूज हो रहे, तो इसमें जब ट्यूब बनती है यहाँ से गाइनोसियम पास आउट होता है, और फिलामेंट जो है फिलामेंट्स फ्री है। सो दिस इज द टिपिकल एग्जांपल इन केस ऑफ फैमिली एस्टरेसी। चलो मैं नेक्स्ट बताता, मेरे ध्यान में आया कल जयंत ने पोस्ट किया था वो। फ्लावर्स हो गए हैं। अब उसके बाद हमारे पास जो भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंसेस है, कुछ प्लांट्स इस फैमिली के फूड करके यूज करते। ऑयल यील्डिंग है, मैंने आपको करडई और सनफ्लावर दोनों का बताया था। कुछ प्लांट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, कुछ प्लांट रबर जैसा लैटेक्स यील्ड करते हैं, कुछ प्लांट्स के लिए इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज है। सो एंड मेनी मोर प्लांट्स आर वीड। सो दीज आर द इंटरेस्टिंग फीचर्स ऑफ दिस फैमिली। अब हम फूड के बारे में देखते हैं। लीव्स ऑफ लेप्टुका सटाइवा आर यूज्ड एज अ सैलाड। रूट्स ऑफ हेलियांथस ट्यूबरोसस आर एडिबल। उसके बाद ऑयल, सीड ऑफ हेलियांथस एंड आर्टिमेसिया यील्ड ऑयल। साथ साथ कार्थेमस के सीड भी, करडई के सीड भी ऑयल यील्ड करते हैं। उसके बाद मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, सॉलिडेगो यूज्ड इन ड्रॉप्सी। ड्रॉप्सी म्हणजे काय हो? हेलो, एनीबडी बता सकता है ड्रॉप्सी? कौन है? अपनी ज्योति, अपनी हड़पे, ड्रॉप्सी मालूम नहीं है? हेलो, चलो अगर आपको मालूम नहीं है ड्रॉप्सी तो मुझे भी देखना जरूरी है, पर ड्रॉप्सी का मतलब मेरे हिसाब से होता है जलोदर। ड्रॉप्सी देखते हम क्या है ड्रॉप्सी। हाँ हाँ बोलो। The major underlying cause of dropsy are congestive heart failure, liver failure, kidney failure and malnutrition। मेरे हिसाब से ड्रॉप्सीला मराठीत म्हणतात जलोदर। इडिमा called as a dropsy long ago is a swelling caused by fluid retention, मतलब बॉडी में पाणी ज्यादा किसी जगह पे, ड्रॉप्सी म्हणजे जलोदर ज्यावेळेला होतो त्या उदरात म्हणजे पोटात खूप पाणी जमा होतं आणि पोट अगदी खूप फुगतं, दॅट इज कॉल्ड एज अ जलोदर।
This condition usually occurs your feet, legs, or ankles. However, it can also occur in hand, face, or any other part of the body. Treatment varies depending on its causes. ठीक है, तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जलोदर या ड्रॉप्सी, तो ड्रॉप्सी में भी इसमें से कुछ यूज करते हैं. जस्ट मिनट, हम कहाँ आए थे वो पहले देख लेते. वीड्स तक आए थे. मेडिसिन में ड्रॉप्सी में हमने ये देखा, सेंटिपिडा ऑर्बिक्युलरिस इज यूज्ड इन कोल्ड एंड टूथेक. रबर, rubber is obtained from Solidago, Leavenworthy and Taraxacum. बहुत बार कुछ प्लांट जो भी लैटेक्स एक्सूड करते हैं, that is nothing but it shows presence of you can produce rubber from it. Insecticides, Capitula of Chrysanthemum roseum and Chrysanthemum cinearifolium are dried, powdered and used as an insecticide. इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है. मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था सॅपोटेसी का मेंबर तुमचा सांगितला होता. सॅपोटेसीचा कोणतं प्लांट सांगितलं होतं सॅपोटेसी मध्ये? बकुळ. बकुळीची फुलं ड्राय केलेली असतील तर बऱ्याच वेळा घरामध्ये इन्सेक्ट सुद्धा येत नाहीत आणि त्याला बऱ्यापैकी वास येतो. तसंच क्रिसॅन्थेममच्या फ्लावरला सुद्धा इन्सेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज आहेत. मी सांगितलं होतं क्रिसॅन्थेमम पासून तयार करतात काय सांगितलं होतं? पायरीथ्रिन. अब ऑर्नामेंटल आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी है, दैट इज ऑर्नामेंटल यूजेस. झिनिया, डालिया, कॉस्मोस, क्रिसैंथेमम, कैलेंडुला, हेलिक्राइसम, एस्टर, हेलियांथस etc. are grown in a garden for their ornamental flowers. वीड, झैंथियम. क्या आप लोगों ने झैंथियम का नाम सुना है? हेलो, Yes, sir. देखा है? Yes, sir. जस्ट मिनट, मैं झैंथियम का आप लोगों को थोड़ा सा फ्लावर दिखा देता. झैंथियम, जस्ट मिनट. झैंथियम स्ट्रोमॅरियमला तुम्ही काय म्हणता बघा? झैंथियम स्ट्रोमैरियम, इसका क्या नाम है? क्या बोलते हैं इसको? एनीबडी? शिप्स आणि गोट्स, ज्या वेळेला शेळ्या मेंढ्या जंगलात फिरायला जातात त्यावेळेला अंगाला लागतात, त्याला काय म्हणतात? Yes, sir. गोखरू. गोखरू. हा बरोबर, तरी गोखरू म्हणलं. आणखी कोणी काय म्हणतं? लांडगा. जयंत कुछ बोल रहा था, देखा है? हाँ सर. जंगलात ज्यावेळेला किंवा जनावर फिरायला जातात तेव्हा त्यांच्या अंगाला हे चिकटून येतात आणि याला चुकून बऱ्याच वेळा गोखरू म्हणलं जातं. बट दिस इज नॉट गोखरू. रिमेंबर, हा गोखरू नव्हे. गोखरू इज अ डिफरंट. मैं आपको दिखाता हूं. गोखरू हा बघा, हा गोखरू आहे खऱ्या अर्थानं आणि हा आहे प्लांट गोखरूचा. ठीक आहे, याचं नाव आहे ट्रायब्युलिस टेरेस्ट्रिस. याला म्हणतात गोखरू. पण चुकून आता जो तुम्ही ऑलरेडी आता बघत होते त्याला चुकून गोखरू म्हणलं जातं किंवा चुकीच्या पद्धतीनं गोखरू म्हणलं जातं. याला बऱ्याच वेळेला लांडगा म्हणतात. त्याचे दोन स्ट्रेट हे असतात आणि बाकी बरेचसे, म्हणून हा जनावरांच्या अंगाला चिकटतो. तर हा सांगितलं मी तुम्हाला झॅंथियम स्ट्रोमॅरियम. दैट आल्सो बिलोंग्स टू सेम फैमिली. हम देख रहे थे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंसेस ऑफ फैमिली. जस्ट मिनट. तर मेडिसिनल बघितला, रबर, इन्सेक्टिसाइडल, ऑर्नामेंटल अँड वीड्स. सो दीज आर द इम्पॉर्टंट थिंग्स रिगार्डिंग दिस फॅमिली. आपण आज इथं थांबूया, पण मी एखादी युट्यूबची लिंक जर अवेलेबल असेल तर ती जस्ट लावतोय. आपण बघूया काय आहे.
नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, तो सिर्फ फैमिली मेंशन की है। विकी आंसर में नहीं जाना, यूट्यूब की लिंक ही अपने को देखना है। जस्ट देखते क्या दिया है। ही पण तितकीशी महत्वाची नव्हती. आपण एखादा, मला इंटरेस्ट तुम्हाला व्हिडिओ दाखवण्यामध्ये आहे, ऑडिओ किंवा फक्त हा बघण्यामध्ये काही इंटरेस्ट असण्याचं कारण नाही, ये भी जरूरी नहीं है। अगर है तो हम वीडियो, अगर है एस्टरेसी का कुछ अवेलेबल तो देख लेते, अदरवाइज नहीं। जस्ट मिनिट। सो देर इज नो एनी ऑडिओ, सॉरी व्हिडिओ रिगार्डिंग दिस फॅमिली, म्हणून आपण हा काय आता बघणार नाहीये। मला वाटतं आपण इथं थांबू, नेक्स्ट टाइम आपण, जस्ट मिनिट। हेलो हेलो। यस सर। हाँ, तो अभी टाइम हो गया है, अभी हम आज यहाँ रुकते, नेक्स्ट टाइम हम कंटिन्यू करेंगे एस्टरेसी फैमिली, ठीक है? यस सर। आज मैक्सिमम कितने, 13-14 ही लोग थे क्या? नहीं सर, 16 थे। 16 थे, ठीक है ठीक है ठीक है। आज यहाँ रुकते, नेक्स्ट टाइम वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट। थैंक यू।